everyone, welcome to another welcome to another episode of I Need Validation on Social Media. In today's episode of Chal Wacky Hafta Day, love the name, Chumma name. We're going to be talking about in today's episode of why am I doing this? Frame ज़्यादा लंबा नहीं मिल रहा है तो तुमको आइडिया नहीं है मैं कितना ज़्यादा बार ऐसे करता रहता बस. We're going to be talking about something which needs to be spoken about. Spoken? English की तो अतिरिक्त. Whole point of this show is to talk about things in a humorous way and to impart wisdom to you. Things which are not trending and we need to talk about them. बीच में निकालते हैं वो continuity में problem होएगा, editing में difficulty हो जाता है. This is how I get back to that future Waqar Rahman sir. One of the reasons why I'm doing this show is because I want to talk about things which people are not talking about, and all of us should talk about how amazing Kangana Ranaut is. Movie Mafia Media is the media that they have bought completely. There is a system, the one who will decide box office, you know, like that. इतना ज़्यादा भर के gossip दिया ना कि maybe half of it's not true, maybe it's completely true, but मज़ा बहुत आ रहा है. It's senseless, but it's so much fun. It's like the Netflix show Indian Matchmaking. तुमको पता है बकवास चालू है, but वो मज़ा बहुत आता है. And then that made a lot of people come out and talk about it. Not about nepotism, but how Kangana Ranaut is. To be honest, हमको भी नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है, बट जो एंटरटेनमेंट दे रहा है हम उसके साथ हैं. इस सारे सिनेरियो से मुझे पास्ट की याद आ गई जहाँ पे कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन वाला जो हुआ था. आई थिंक अर्णव गोस्वामी थेरेपिस्ट जैसा काम कर रहा है बिटवीन ऋतिक एंड कंगना. तो कभी ऋतिक से बात करेगा, कभी कंगना से बात करेगा, और दोनों से एकदम नेचुरली ऐसा बैलेंस रहता है. ही कैन बी अ गुड रिलेशनशिप एडवाइजर, लाइक अ रिलेशनशिप काउंसलर और समथिंग. आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो बीच में से वैसा थोड़ा सा ना ऋतिक रोशन आ बात कर रहे हैं, एंड शी काइंड ऑफ ड्रॉप्ड हिंट ऑफ ऋतिक रोशन. सॉरी वेट, शी काइंड ऑफ ड्रॉप्ड हिंट ऑफ ऋतिक रोशन. She started talking about nepotism. I'm like, oh fuck, now she will talk about how nepotism and all, and then she will connect it with Hrithik Roshan, but she didn't. It's wrong, because if you're talking about nepotism, you have to talk about Hrithik Roshan. And you know why? Because Hrithik Roshan he's a victim of nepotism. That guy, because of nepotism, has to dance on Rajesh Roshan's music. I think we should start a hashtag. Hashtag Hrithik Roshan's dance matter. भाई नहीं है क्या यार कब से तेरे से काम मांग रहा हूँ यार, दे देना. फ्रीलांसर को मदद करनी चाहिए यार. और मैं ये नेपोटिज्म के बारे में न्यूज़ घर पे ज़्यादा देख नहीं रहा. व्हाट इफ अगर मेरी मॉम गलती से एंटी नेपोटिज्म हो गई तो मैं बचपन से ना स्टे ओवर पे नहीं जा रहा हूँ, सो दैट मैं मेरी माँ के आंखों का तारा बना रहा हूँ. मेरे मॉम और डैड बहुत ज़्यादा अमीर हैं और मुझे इस जायदाद में हिस्सा चाहिए, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरे हाउस हेल्प को दे दे यार इन लोग की. मैं बचपन से स्टे ओवर मिस कर रहा हूँ. इतना ज़्यादा सब लोग जाते थे जाके ये पूरा साल. आई कांट इवन स्टे स्ट्रॉन्ग. आई कांट इवन थिंक अबाउट इट कि मुझे ये जायदाद नहीं मिलेगी. एंड दिस इज नॉट अ क्लासेस जोक, ओके. ये पंच अप पंच डाउन इसमें कुछ नहीं है. ये सेल्फिश डिजायर है. मुझे पूरा जायदाद में हिस्सा चाहिए, ना 1% दूंगा मैं किसी को भी. It's all mine, it's my precious, it's all mine. Liverpool fans have taken to the city streets after the club secured the Premier League title. Their last top-flight win came in 1990, what was then the First Division. Liverpool, after 30 years, have won the title. सच है कि दिल तो दुखा है. English Premier League, दिल ने मगर सोचा है, which is like a lot of time. I mean, the last time Liverpool won the title, I was in my dad's nutsack. No graphics, मजा नहीं आया. The last time Liverpool won the title, some pedo was asking Chris D'Elia for the photos. Oh wait. No. By the way, how do you pronounce his name? Chris D'Elia. Dalia खाने वाला दलिया और D'Elia. इसे भी जोक इतना कुछ खास नहीं था. Let it be. Last time Liverpool won the title, we thought India will be superpower in 2020. थोड़ा सा ट्रिगर हुआ ना. मैं जोक निकालने वाला था. I don't want to blame it on future Waqar because I don't know whether future Waqar का future है कि नहीं. See you in heaven, guys. I'm going to heaven for sure. Because ये सादा जैकेट नहीं है. एक मुस्लिम जोक तो बनता है यार. The last time Liverpool won the title, Michael Jackson was black. Or was he white? It doesn't matter. I'm not trying to be racist. How else will I describe him? Because he face आ रहे थे ना, मतलब एक black white skin color कैसे? Last time Liverpool won the title, there was no stupid article on the internet saying only 90s kids will remember. Last time Liverpool won the title, Black Lives Matter. Did it? Last time Liverpool won the title, there was equality in pay. Last time Liverpool won the title, men and women both were considered equal. Last time Liverpool won the title, women felt safe in Delhi. Alok Nath had women felt empowered. Wait a sec. It's very similar to how it was last time Liverpool won. Things are similar to how it was earlier. So इतना time थोड़ा ना. Why are you making a big deal? सब same ही तो है.
Environmental Impact Assessment or EIA is the process or study which predicts the effect of a proposed industrial or infrastructural project on the environment. Experts say most of the provisions in the new draft of EIA proves to be a regressive departure from the earlier version. Recent incidents such as the gas leak at the LG Polymer plant in Visakhapatnam and the blowout and fire at the Oil India Limited in Assam are some of the examples that points out at the importance of EIA in our country. Yeah, a lot of people know about Bhopal gas tragedy which happened in 1983. उसके बाद 1986 में EIA ड्राफ्ट किया गया था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का ये काम है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या कमर्शियल बिल्डिंग या फैक्ट्रीज है, जो भी है, डैम हो गया, कोल प्रोडक्शन कंपनी, उसका एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। EIA की रिपोर्ट में वो सारी चीजें होती हैं। कार्बन एमिशन होता है, वो कितना होता है, नेबरिंग वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है, कितना pH लेवल इंक्रीज होगा, इससे एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर पे अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, परमिसिबल लिमिट के अंदर है या नहीं। मेन एम जो है EIA का इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। EIA का रिपोर्ट इज जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट को पास करने के लिए EIA रिपोर्ट लगती है। मुझे कैसे पता है? बिकॉज आई केयर फॉर दिस एनवायरमेंट और मैंने MBA में इलेक्टिव लिया था EIA का। एक्चुअली मैंने वो इसलिए लिया था क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मुझे AA मिला था। मेरे पास मार्कशीट है, ठीक है। आई एम नॉट लाइक सास भी कभी। तेरे को पता है मिहिर मर के वापस क्यों आया था? बिकॉज तुलसी couldn't find her papers, तो वो आया वापस उसको पेपर्स देने के लिए। एंड देन ही केम बैक एंड ही वाज लाइक ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। सो गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर आपको कोई दिक्कत है उससे, तो यहाँ पे लोगों को बर्तन धोने से फुर्सत नहीं मिल रही और तुमको ये सारे काम करने। सो द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। अगस्त 11 तक आप ये बता सकते हो गवर्नमेंट को कि यार कि ये EIA में ये प्रॉब्लम है और मुझे नहीं चाहिए कि EIA 2020 आए। बेसिकली हाउ यू स्टॉप योर गर्लफ्रेंड फ्रॉम मीटिंग अदर गाइज, उसका तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जस्ट डू द सेम फॉर द एनवायरमेंट। गो एंड राइट एन ईमेल। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID दे दूंगा, EIA 2020 के PDF का लिंक भी डाल दूंगा। जस्ट रीड अबाउट इट एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। आर माधवन ने जैसे रंग दे बसंती में बोला था, घर की सफाई में हाथ गंदे कौन करे। ये डायलॉग का EIA से क्या लेना देना है? इन लोगों को सिर्फ ईमेल लिखना है, कुछ जाके कुछ करना नहीं है। सो मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट मेक यू गो एंड रीड मोर अबाउट EIA एंड डू समथिंग अबाउट इट। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और प्रोजेक्ट को क्लियरेंस जल्दी मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द न्यू ड्राफ्ट द गवर्नमेंट इज सेइंग अगर आपको प्रोजेक्ट चालू करना है आप चालू कर दो, आप थोड़े टाइम बाद एनवायरमेंट क्लियरेंस ले सकते। एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाद में ले लेना। एनवायरमेंट क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ये एनवायरमेंट की बात हो रही है, ये कोई गाड़ी नहीं है या कोई फ्लैट नहीं है कि बुक टुडे एंड पे टुमारो वाली चीज। ये जीरो कॉस्ट EMI कल्चर की वजह से ना ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड ऑल्सो दे हैव रिड्यूस्ड द टाइम फॉर पब्लिक हियरिंग। सो पहले क्या होता था, अगर कोई जगह पे कुछ बन रहा है, चीजें आसपास में जो लोग रहते हैं वहां पे पब्लिक हियरिंग होती है कि आपको इससे क्या दिक्कत है या कोई दिक्कत होगी, आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप रेज कर सकते हैं। एंड पहले 30 दिन दिए जाते थे, जो एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि 30 दिन भी कम हैं। एंड अग्रीड, 30 दिन कम हैं, because if you know the pace at which the government operates, 30 days is just like 3 hours and now they have reduced it to 20 days. पहले क्या होता था कि अगर कोई environmental violation हो रहा है, environmental जो भी हो रहा है, environmental violation हो रहा है, उसको पहले public भी जाके report कर सकती थी। But according to the new draft, government and जो project बना रहे हैं, yep, you heard me right, जो project बना रहे हैं सिर्फ वो report कर सकते हैं। So all you have to do is just go and write an email, description में email दिया गया है, and just let them know man that this is genuinely stupid. Don't write that this is genuinely stupid. Date extend हो चुकी है August 11 तक. Please do your bit. And अगर आपको problem नहीं है with EIA 2020, that's great man. I mean it says a lot about you, but that's great. I don't judge you. I shave my chest. Who am I to judge you? ये वाला episode थोड़ा छोटा होगा. A lot of people say that the last episode was too long and we couldn't handle it. That's what she said. Alright guys, thank you so much for watching this episode. This is Waqar Rahman signing off only on यार कोई तो प्रोड्यूस करा दो यार, कोई तो प्लेटफॉर्म या चैनल आ जाओ ऑन बोर्ड यार। IGTV नहीं बोला जाता है यार मुंह से। अगर 2020 में भी अगर ये क्लियर नहीं हुआ है आपको कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, देन यू आर स्टूपिड, दैट्स ऑल। यू आर जेन्युइनली स्टूपिड बिकॉज EIA इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड जैसे आप सबको पता है ग्रेटा थंगबर वो बच्ची, ट्रम्प डजंट लाइक हर। टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता नहीं, उसको देख के ना बहुत इरिटेशन सा, वो नर्ड्स की याद दिलाती है जिसको ऐसा लगता है कि उसको सब पता है। Sleeping on the last bench. She looks like this, man. This is shouldn't have shown. There's no explanation to why I have this doll in my house. Like how certain someone can't explain 2002. वैसे I can't explain this. I'm genuinely scared right now. It's 3 in the night. Can you not look at me?
So EIA basically, watch your hands, honey, to first buy me dinner.